Let's resume our session for today, that is on LinkedIn marketing. So first of all, would like to ask how many of you have completed your last videos uh, on WordPress, SEO, fundamental of digital marketing, Facebook, and Twitter. So would like to know that how many of you have completed your videos on online portal that you have enrolled. So if you have completed, then type yes in the chat box. And after then I'll start with your today's topic, that is on LinkedIn marketing. Yeah, please type yes in the chat box. Meanwhile, rest of the videos for the sessions that we have taken till now. Yes, I'm just waiting for other participant to comment or type yes in the chat box. Yeah, we have around 10 plus students. All right, so let's start with the topic that is on LinkedIn marketing. So LinkedIn marketing. So before going ahead for the LinkedIn marketing, I will be addressing to you all, right? So before starting for the LinkedIn marketing, you all should have your account on LinkedIn, and that I'm assuming many of you already have their account. So the most important thing when it comes to LinkedIn is not all about marketing, because there are very few things or few services or indirect methods in which ways you can publish your or you can sell your product indirectly on LinkedIn. Marketing is all about selling your product online, right? Isn't it? This is the basic. What is marketing? You're going to sell your product online. We are not going to do marketing here, but you will be learning the basics that if you would come across ever in your life for this type of situation, you're going to start your startup, you have to market your product. So how would you proceed for that? You should have that basic knowledge, right? And for the course that you have filled the Google form, this course is all about that. So for the LinkedIn, you already have your account. And when it comes to marketing, so you cannot directly sell on LinkedIn. You have to do indirect selling. You have to publish about your product and services online on LinkedIn. Then by doing so, you can go ahead with this, right? So this is the basic about the LinkedIn. So now there are some few theoretical steps, some of the practical steps. What is important for you? That is important right now, because we don't go deep dive into the theory, because that is already available on lots of blogs on internet or on YouTube, right? So most important, we are going to discuss about how to optimize your LinkedIn profile so that it becomes visible to the recruiters. All the skill sets that you have, that will become visible to all the recruiters that is recruiting on LinkedIn, or how LinkedIn for a young professional can be helpful for job searching, for job listing. If you're working as an employer, if you're working in HR, let's say, maybe some of student maybe do MBA in HR and then go ahead with this sort of profession, then you can do job listing as well, right? So let's say for the LinkedIn marketing. So you know that LinkedIn is the world largest network, professional network. We have another social media platform as well. We have Facebook, Twitter, Instagram, different social media platform. But on these social media platform, we do different type of marketing when it comes to marketing. Because on every social media platform, we do marketing, but it depends the audience size and where do you want to publish your product, like in which age group you want to show your product, to the age group of 15 to 30 or 30 to 45 or 45 to 60. It's all depend upon that which social media platform you're going to opt for. Your marketing is completely depend upon the type of audience you're going to select to publish your product and sales. So when it comes to LinkedIn, LinkedIn is the world's largest professional network, and this platform is not only so are you comfortable in Hindi as well? Okay, so where I was, okay, so LinkedIn मार्केटिंग के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो आपका ये प्रोफेशनल नेटवर्क
प्रोफेशनली यूज नहीं होता है जॉब सर्चिंग के लिए या लिस्टिंग के लिए, बट आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मार्केटिंग के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको जॉब लिस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, आप इसमें अपने लिए कोई जॉब सर्च कर सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। 3-4 चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन मार्केटिंग is a process of using LinkedIn to make connection. Connection means the way जैसे आप Facebook पे फ्रेंड्स बनाते हैं, Instagram पे फॉलोअर्स, तो LinkedIn पे आपके कनेक्शंस होते हैं। आई थिंक ये सबको पता ही है, but we have student online, so for them as well. So you can generate leads as well. You can improve brand awareness. Okay, when it comes to brand awareness, this words means आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैं कोई बिजनेस मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का कोई बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पास कोई मैंने स्पेस ले लिया छोटा सा, मैंने सामान ला दिया कहीं से, फॉर एन एग्जाम्पल कहीं से मैंने सामान ला के रख दिया, लेकिन मेरे पास कोई ऑडियंस ही नहीं है। मैं किसको सेल करूंगी अपना सामान? बॉयज के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स, गर्ल्स के लिए लेट्स से ज्वेलरी शॉप मैंने कोई ओपन कर ली, लेकिन मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है कोई, तो मैं किसको सेल करूंगी अपना सामान? क्योंकि ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ऑडियंस होना बहुत जरूरी है। पहले हम ऑडियंस क्या करते थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके से ले आते थे, ब्रोशर्स बनवा दिए, कहीं किसी को बता दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन अब जो मार्केटिंग का फॉर्म है वो चेंज होके ऑनलाइन हो गया है आपका, राइट? सो लिंक्डइन भी एक ऐसा पार्ट है। अभी आपको रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं आप धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बट today just focus on the LinkedIn, how LinkedIn can be used, how it can be how effectively it can be used, कैसे हम इसको effectively यूज कर सकते हैं लिंक्डइन को। तो लिंक्डइन पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपनी लीड्स को, कनेक्शन बना सकते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, कॉर्पोरेट के साथ इवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लिंक्डइन पे कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीके हैं जो हम लिंक्डइन पे अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिंक्डइन का आपको थोड़ा सा आइडिया चल गया पता कि लिंक्डइन क्यों यूज होता है। लोकल कनेक्शन आप ऐड करेंगे, जैसे आप मोहाली में हैं अभी, तो आप नियर बाई की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके एचआर के साथ अपना उनको ऐड कर सकते हैं लिंक्डइन पे। प्लस आपका जो कंटेंट है वो अपने जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपका प्रोफाइल स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा। लेकिन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल बिजनेस ओरिएंटेड होगा, तो आप वैसा ही कंटेंट उस पे बनाएंगे। जॉब सीकर्स के लिए अच्छा है, जॉब प्रोवाइडर के लिए अच्छा है, कंटेंट लाइव होता है, अपडेटेड कंटेंट रहता है इसमें। वीडियो प्रोफाइल्स भी आप बना सकते हैं अपनी लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? व्हाई लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट? वही है कि आप जैसे मोहाली में हैं तो आप नियर बाय के लोगों को अपने लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं। नियर बाय के लोग जैसे एचआर जो होंगे लोकल्स, उनको आप ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन इज मैं यहाँ से एक मिनट आपको पीपीटी से बता देती हूँ। लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट फॉर B2B मार्केटिंग। व्हाट इज B2B मार्केटिंग? राइट, बिजनेस टू बिजनेस। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो B2B मार्केटिंग जो है वो आपकी लिंक्डइन पे अच्छी होती है। प्रिसाइज टारगेटिंग, मतलब जिसको आप टारगेट करना चाहते हो उसको आप अपना सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट एंड सेल्स, ठीक है? तो जिसको आपने सेल करना है उसको आप सेल कर दो अपना प्रोडक्ट। जैसे अब न्यूज़पेपर की बात करूं, पहले हम लोग न्यूज़पेपर प्रिंट कराते थे, न्यूज़पेपर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था, हमें तो पता ही नहीं होता था कहाँ जा रहा है वो, है ना? लेकिन ऑनलाइन एड में आप ट्रैक कर सकते हो। मैं गूगल एड्स की बात कर रही हूँ, अगर गूगल एड पे आप कोई एड चलाते हो तो आप पूरी ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपकी एड कहाँ कहाँ दिखी है, कौन से एरिया में, किस टाइप की ऑडियंस ने देखी है। तो ये सब चीजें आप गूगल एड्स में अच्छे से ट्रैक कर लेते हो। नॉट ओनली गूगल एड्स बट लिंक्डइन पे भी आप एड चलाओगे, उस पर भी ट्रैक कर लोगे। LinkedIn is about less about selling and more about brand awareness. And LinkedIn is important for employers or job seekers for both. तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी प्रैक्टिकल में हम क्या क्या करेंगे, पहले तो जिसका प्रोफाइल नहीं है वो अपनी स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल को फिल करके उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अपनी प्रोफाइल को कैसे सर्च करना है, नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है। अगर आप किसी कंपनी कोई आप कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का मेरा बिजनेस है,
बट ऑटोमोबाइल पार्ट का बिजनेस आपका लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। जैसे मेरी कोई आईटी कंपनी है ना, तो उस केस में मैं अपना एक लिंक्डइन पे पेज बना सकती हूँ, कंपनी की प्रोफाइल सेटअप कर सकती हूँ, पेज की विजिबिलिटी बढ़ा सकती हूँ, और बाकी भी रेस्ट ऑफ द टूल्स। और लास्ट में आएगा कि लिंक्डइन में ऐड कैसे चलानी है। ठीक है, तो आपके तो सबके ऑलमोस्ट अकाउंट है लिंक्डइन पे, एंड यू नो it very well how to create your account and how to make connection on LinkedIn and how to do your basic editing. Okay, for the student who are connected to us online, would like to know आपके किस किस के अकाउंट हैं LinkedIn पे। आप yes टाइप करें चैट बॉक्स में जिसके अकाउंट हैं LinkedIn पे, so that फिर मैं आपको डायरेक्ट LinkedIn मार्केटिंग पे आऊंगी कि आपने कैसे मार्केटिंग कैंपेन बनाना है LinkedIn पे। या फॉर द स्टूडेंट जो हमारे नो मैम नहीं है आपका अकाउंट, ओके महक अकाउंट नहीं है लिंक्डइन पे, ओके बाकी स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 19 वी हैव ओनली 1 रिस्पॉन्स। ओके त्रिशा का भी नहीं है, और स्टूडेंट जिनके अकाउंट नहीं है लिंक्डइन पे। ओके आई थिंक 3 हाँ रोहित रितु कमल किसी का भी अकाउंट नहीं है, राइट ओके नो इश्यूज। आई विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल फॉर यू गाइस। ओके चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं फिर इसका ही कि कैसे आपने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। So how to create your account on LinkedIn? पहले आप इस लिंक पे जाएंगे। I'm just sharing this link in the chat box too. So when you go to this, just a moment. So this is the first page you come across here. So इस पेज पे आप आएंगे, क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी चेक का एक ऑप्शन है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ पे, जो टॉप राइट पे कॉर्नर पे यहाँ पे बटन है ज्वाइन नाउ। देन इसके बाद आप यहाँ पे अपना, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तब तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे अपना ईमेल पासवर्ड, बट जैसे कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप। तो साइन अप का यहाँ पे आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ईमेल है एक, मैंने अपनी कोई ईमेल आईडी अपनी एंटर कर दी और पासवर्ड। अब मैं इसमें अपना नाम एंटर कर दूंगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे आएगा आपको, आपका कंट्री सिलेक्ट करेंगे और रीजन। तो लेट्स से रीजन में मैं सेलेक्ट करती हूँ चंडीगढ़, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन आप अपना टाइटल ऐड करेंगे इसमें, जॉब टाइटल लेट्स से मैंने कर दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप और कंपनी का नेम। देन आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट, राइट। देन मैं करती हूँ यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट। देन आपका यहाँ पे आस्क करेगा ये कॉलेज का नेम, जिसे मैंने कर दिया HPTU, इट्स इन कैपिटल।
देन आपका स्टार्ट ईयर, जैसे मेरा स्टार्ट ईयर है 2020 एंड एंडिंग इन 2024, ठीक है। देन यस और कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। मतलब आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है कॉलेज की, कॉलेज का ईयर एंड देन दिस। अब इसने आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल सेंड किया होगा, आप उसको चेक करेंगे। I need to check it out, just give me a 5 minutes. Okay, so there is issue in login, so I need to do one thing. So I can edit this email. Let's say I'll go ahead with another email that I have. Just a moment. I'll just change this. Okay, it's already in use, so we can do one thing we can do with this. So when you enter your basic details, first name, last name, your designation or in which company you're working, अगर आप student है तो student वाला detail fill करेंगे, start year, pass out year, और अपनी email ID enter करेंगे। email ID पे आपको एक verification email मिलेगा। मेरे केस में ये recover नहीं हो पा रही ID, so मैंने try भी किया है अभी। तो अभी आप यहाँ पे अपना email ID और password enter करके confirm कर देंगे, right? So मैं अभी अपना साइन इन करके आपको दिखाती हूँ, साइन इन करके आप कैसे लॉग इन करेंगे। तो लिंक्डइन साइन इन पे जाएंगे, ठीक है। तो साइन इन पे चले गए आप लिंक्डइन पे। ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा लिंक्डइन पे, तो आपका प्रोफाइल इस तरह से दिखेगा। In the top corner, you'll have a bar showing your home, network, jobs, messaging and notification tab. और लेफ्ट पैनल पे आपको आपका डिटेल शो होगा, जिसमें आपका नेम और प्रोफाइल का डिटेल, एंड मिडल में आपको सारी पोस्ट, एंड राइट में भी आपको सारा फीड सेक्शन। So in this way, you can create your account on LinkedIn, but for that you need to have a valid email ID और email address। और जैसे मेरे पास एक email ID था, वो मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं था, मैंने रिकवर किया, रिकवर भी नहीं हुआ। So I just tried to log in with another email ID so that you can have its practical, right? But in your case आप अपना email ID यूज करेंगे, फिर email ID की confirmation करके आप अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन कर जाएंगे इस तरह से, राइट। सो आई होप इतना क्लियर है सबको कि हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद आप अपने यहाँ पे माई नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ से कनेक्शंस ऐड करेंगे। कनेक्शंस मींस रिक्रूटर्स हैं आपके, कोई डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, उनको आप लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ इनको फॉलो कर देती हूँ, इनका कोई पेज है तो मैं इनको फॉलो कर देती हूँ। आपके पास अलग है कोई, इनको फॉलो कर लो आप, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको अलग टाइप का कनेक्शंस बिल्ड हो जाएगा आपका लिंक्डइन पे। तो आपका एक प्रोफाइल मेंटेन हो गया लिंक्डइन पे इस तरीके से, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास होम पेज। माई नेटवर्क में जाके आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे। जैसे ये जितने भी हैं, ये न्यूज़लेटर्स हैं, आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं, यहाँ पे पेजेस भी हैं,
अब जो आपके पास पेजेस हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, फॉलो पे क्लिक करके, यहाँ पे भी फॉलो पे क्लिक करके, और जो कुछ कनेक्शंस आपको मिलेंगे आप उनको रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, जस्ट कम टू दी होम पेज नाउ। होम पेज पे आके आप पहले एक बारी स्क्रॉल कर लें, जितना भी आपने करना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको शो हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल पे, तो मैं नेम पे क्लिक करूंगी। नेम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स एडिट करेंगे, यहाँ पे वॉल इमेज है आप वो ऐड करेंगे, और इसके साथ आप क्या करेंगे, अपना ओपन टू वर्क आप लगा सकते हैं, आप प्रोफाइल सेक्शन ऐड करेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रोफाइल में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, वो ऐड करेंगे। तो लेट्स चेंज इट्स प्रोफाइल पिक्चर फर्स्ट। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, अपलोड फोटो पे क्लिक किया। कोई पिक्चर अगर मेरे पास है डाउनलोड पे तो मैं उसको शो कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी पिक्चर हियर, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, लेट्स से आई जस्ट यूज दिस फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गया, राइट। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गया ये। बट हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, किसी का भी लोगो अपनी प्रोफाइल पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीडेक का लोगो है, राइट। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। आई जस्ट डाउनलोड वन पिक्चर हियर, मैं एक पिक्चर डाउनलोड कर लेती हूँ। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम फ्री पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। पेक्सेस है हमारे पास, अनस्प्लैश है, फ्री पिक है। चलो फ्री पिक से कर लेते हैं। तो लिंक्डइन के लिए मैं करूंगी लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए बैकग्राउंड भी करेंगे, और चलो ये बैकग्राउंड कर लेते हैं, सेव इमेज। सेव इमेज नहीं करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, सेव इमेज करेंगे देन डाउनलोड। ओके, देन लिंक्डइन पे जाके मैं लिंक्डइन पिक, या आप ऐसे कर सकते हैं लिंक्डइन प्रोफेशनल। सो लेट्स से मेरे पास एक इमेज आ गई है। फ्री इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सल से, स्प्लैश से। ये वाली सारी पेड है, ये वाली प्रीमियम वर्जन की है। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कौन सा फ्री वाला ये है। जैसे डाउनलोड किया है इसको, यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं करेंगे, फ्री पे करेंगे। इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं, बैक गए, इमेज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, इमेज को सेलेक्ट किया, देन ओपन कर दिया, एंड देन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप करके फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, इसका लाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा इतना, जो ये सर्कल है इसके अंदर वाली इमेज आएगी, तो जो ये सर्कल के अंदर का एरिया ये क्रॉप होके आएगा आपके पास। जूम इन सेव फोटो करेंगे। तो ये चेंज हो गया है आपके यहाँ पे भी शो होती है, बट नेट का थोड़ा इशू है शायद, यहाँ नहीं हो रही शो, बट आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कैमरे पे क्लिक करेंगे, देन बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओपन। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ओपन तो आपके पास इसमें भी एक स्क्वायर का ऑप्शन आएगा, स्क्वायर के अंदर वाला एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, लेट्स से स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने। स्क्रॉल डाउन कर दिया ये, क्लिक ऑन अप्लाई।
यहाँ पे चेंज होना चाहिए लेकिन चेंज हुआ नहीं है, रीजन नेट का ही है। मैंने लिंक दोबारा सेंड कर दिया है, आप चेक कर लें चैट बॉक्स पे। इसके नेक्स्ट आप अपना ऐड करेंगे, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप ऐड पोजीशन कर सकते हैं, आपके पास क्या स्किल सेट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड स्किल सेट किया है तो मैं रिसर्च स्किल डाल देती हूँ यहाँ पे। फिर आप देखेंगे 70% ऑफ हायर्स वैल्यू स्किल कॉन्टेक्स्ट, सेलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम टू शो वेयर यू यूज दिस स्किल। तो मतलब मैंने ये वाला रिसर्च स्किल कहाँ यूज किया है, जहां से मैंने स्टडी करी है। सेव। आप वन से ज्यादा भी स्किल सेट ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर, जैसे मैंने कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अभी मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपके डिफरेंट कंपनीज के नेम होंगे। क्लिक ऑन सेव। राइट, तो आप यहाँ चेक करेंगे आपका जो ये सजेस्टेड फॉर यू वाला बार है, ये 5 out of 7 कंप्लीट हो गया है। लाइक यू नीड टू फिल 2 more ऑप्शन हियर एंड देन दिस बार विल बी कंप्लीटेड टू अप टू 7। राइट, सो आप अपना समरी ऐड कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, या कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो यू कैन राइट इट डाउन हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन सेव। राइट, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे, बैकग्राउंड ऐड करेंगे, स्किल सेट ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ओपन टू वर्क करना तो आप यहाँ कर सकते हैं फाइंडिंग अ न्यू जॉब्स, तो आपका जो जॉब रोल है वो चेंज हो जाएगा। ऑन साइट लेनी है आपको जॉब या आप रिमोट ऑप्शन देख रहे हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, मैं इस लोकेशन पे देख रही हूँ। क्लिक ऑन सेव। जॉब टाइटल जैसे मैंने कर दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सेव। अच्छा, विजिबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लिंक्डइन मेंबर्स को ही दिखे या रिक्रूटर्स जो है उनको ही दिखे, तो मैं कहती हूँ रिक्रूटर्स को शो हो जाइए, तो क्लिक ऑन सेव। राइट, तो अब आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन टू वर्क दिखाएगा। कई प्रोफाइल में आपने देखा होगा ओपन टू वर्क आता है, तो वो वहीं से आता है ओपन टू वर्क। राइट, होम पेज आपका डन हो गया, नेटवर्क टैब आपका डन हो गया, एंड नोटिफिकेशन आपका डन हो गया। राइट, ओके, सो दैट्स ऑल कि आपने कैसे प्रोफाइल बनाना है अपना लिंक्डइन पे। सो कमिंग बैक टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, सो अभी आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि कैसे आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट चैट बॉक्स में टाइप कर दें, देन विल टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स। Okay, good morning. I think one of the participant have joined us now. ओके, सो अभी तक मैंने ये बताया लिंक्डइन पे आपने कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर किसी को डाउट है यहाँ तक किसी स्टेप में, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन विल रिज्यूम आवर सेशन आफ्टर द ब्रेक। किसी को कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है।
So let's have a break for few minutes and then we'll come back to you. Thank you. All right, so let's resume our session. So we were on LinkedIn, right? So LinkedIn पे हमने देखा कैसे अकाउंट क्रिएट करना है. So अभी हम देखेंगे LinkedIn पे कैसे आपने अपना मार्केटिंग कैंपेन बनाना है. तो LinkedIn में मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बिजनेस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक्डइन में मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको कंपनी का पेज चाहिए. तो कंपनी का पेज आपके पास अभी है नहीं कोई भी, तो हम अपना कंपनी का पेज भी एक बारी के लिए बना लेंगे. उससे क्या होगा? आपका कंपनी का एक प्रोफाइल बन जाएगा कि आपकी कंपनी है और आप ये ऑफर करते हैं, राइट? तो ये वाला जो ऑप्शन है क्रिएट अ कंपनी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई लिंक्डइन पे मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं. तो मैं क्लिक करूंगी एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे जब क्लिक करूंगी तो इसके अंदर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ कंपनी पेज. तो सॉरी, मैंने गलत क्लिक कर दिया. मुझे करना था एडवर्टाइज पे, तो मैं करूंगी एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे क्लिक. राइट, तो मैंने एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे क्लिक कर दिया. तो हम अभी यहाँ पहुंच गए इस ऑप्शन पे. राइट, तो मेरा स्क्रीन आई होप विजिबल है और सब स्टूडेंट अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं. तो ये वाला पेज है मेरा मार्केटिंग के लिए कि यहाँ पे आके मैं अपना मार्केटिंग का कैंपेन क्रिएट करूंगी. तो मार्केटिंग का कैंपेन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है. तो मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर लिया. क्रिएट कैंपेन पे जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 ऑप्शंस आएंगे जो आपको फॉलो करने हैं. रीजन बीइंग कि आप एक ऐड बनाने जा रहे हैं और वो ऐड आपकी लिंक्डइन पे शो होगी. तो ये मेरे अकाउंट का नाम है. अब मुझे यहाँ पे पेज चाहिए, जो मैं पेज की बात कर रही थी ना, ऐड अ लिंक्डइन पेज. तो इससे क्या होगा? यू कैन कनेक्ट योर कंपनी पेज टू अनलॉक ऑल अवेलेबल एड फॉर्मेट. अगर आपके पास ये नहीं है ये वाला पेज, और अगर आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा we were not able to authenticate your identity. If this issue continue, please contact customer support. Right? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पेज ऐड करना है. मेरे पास पेज तो है नहीं कोई. ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी मैं. राइट, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे. वे कह रहे हैं कि आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए. तो गो टू लिंक्डइन सेटिंग पे. और ये वाला ईमेल एड्रेस हमारे पास है. तो वेरिफिकेशन तो अभी नहीं हो पाएगी मेरी, तो मैं इसको ऐड ईमेल एड्रेस करती हूँ. So we don't have. Let me close all the tabs first. तो ये वाला जो मेरे पास है ईमेल आईडी, ये रिकवर नहीं हो रहा है, तो मेरे को ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा. लेट मी ट्राई फर्स्ट. जैसे मैं एंटर करती हूँ, सिक्स डिजिट कोड. तो 6 डिजिट कोड तो मेरे पास अभी है नहीं. जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. I don't have this email ID password. I'll do one thing, come back. Right, click on business or click on your another ID. Just a moment.
कंटिन्यू। राइट, अब मैं इस आईडी से अपना लिंक्डइन यूज कर रही हूँ। So I'm using LinkedIn. So I need to check this code. Okay. So here is your code. 689. Okay, so this is the code. मैं पासवर्ड सेट करती हूँ. So I'm using the user generated password here. Right, go to LinkedIn. अब LinkedIn क्लिक करने के बाद क्या करना है, मुझे कंपनी का पेज बनाना है और कंपनी का पेज बनाने के बाद आपको उसको शो कर देना है. तो मैं क्लिक करूंगी. तो यहाँ पे जाएंगे हम एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन. एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन के बाद क्लिक करेंगे. क्रिएट कैंपेन. अब आप यहाँ पे अकाउंट का कैंपेन का नेम सेट करेंगे. अकाउंट का नेम सेट कर दिया. कंपनी का पेज ऐड करेंगे. कंपनी का कोई पेज मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी. ऐड न्यू पे लिंक्डइन सेटिंग पे जाके पहले मुझे कंफर्मेशन करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी का. ठीक है, रीसेंड करेंगे वेरिफिकेशन लिंक. तो वेरिफिकेशन लिंक मैं चेक कर लेती हूँ. तो मेरे पास वेरिफिकेशन लिंक आ गया है. तो अभी मैं इसको पेस्ट करूंगी. Let me open my Gmail here. तो ये कंफर्मेशन हो गया मेरा. मैंने क्या किया, जो मेरे पास ईमेल एड्रेस था यहाँ पे इन्होंने कहा है they just want to check my email address confirmation. So what I have done, I have just went through my email ID और email ID में जाके मैंने अपना ये वाला जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर लिया. राइट, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद नाउ ये वाला लिंक ओपन हो गया. हम जाएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे. एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे हम अब जाके हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड हो गया है. और एंड होने के बाद अब वेरिफिकेशन के बाद हम मार्केटिंग का कैंपेन बनाएंगे. राइट, तो हमने अकाउंट का नाम दे दिया. अब हमने कंपनी का एक पेज बनाना है. सो दिस इज द प्रोफाइल वेयर आई वांटेड इट टू बी. राइट, तो क्या करेंगे हम अभी कंपनी का पेज बनाएंगे. सो दिस इज द info where we have to be there. Right, so we were here. So now I'm going to create a page for company. कि आपने अगर कोई ऑफिशियल पेज बनाना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे. क्लिक ऑन कंपनी. कंपनी का नेम ABC. एंड देन आपके पास कोई वेबसाइट है. देन आपके पास कोई कंपनी है, कितने एम्प्लॉयज हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है. आप अपनी कंपनी के लिए लोगो सिलेक्ट करेंगे. जैसे मैंने कर दिया IT सर्विसेज, तो ये IT सर्विसेज आ गया.
तो ये वाला यूआरएल ऑलरेडी है, तो मैं करूंगी HAG, जो आपका यूआरएल यूज नहीं हो रहा कंपनी के लिए, जैसे मैंने कर दिया स्पेशल यूआरएल फॉर द कंपनी पेज। नाउ आप लोगो सिलेक्ट कर लिया आपने, जैसे मेरे पास लोगो पहले था, मैंने ये वाला लोगो बना दिया। दिस इज द लोगो फॉर माय कंपनी एड। आप टैगलाइन रख सकते हैं, वी आर ऑफरिंग सर्विसेज in IT. Click on I verify and create page. Okay, before creating page, you need to expand your network. So I'll just do one thing, click on ओके मेरे इस अकाउंट में कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तो मुझे पहले कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने कुछ पेजेस फॉलो कर दिए, कुछ कनेक्शंस फॉलो कर दिए, कुछ ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, राइट, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लिया, एंड कुछ पॉपुलर पीपल को फॉलो भी कर लिया मैंने। So these are the basic things, right? So in this way you can create your page on LinkedIn, right? So LinkedIn पेज आप ऐसे बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बना सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, कंपनी का पेज बना सकते हैं, कंपनी का पेज अलग है, शोकेस पेज अलग है। तो मैं अब ABC एंड देन आपके डिफरेंट यूआरएल, जैसे मैंने पहले एक नाम दिया था स्पेशल यूआरएल, तो ये आपका जो यूआरएल है वो यूनिक होना चाहिए और प्रीवियस नहीं होना चाहिए, राइट? तो यूनिक यूआरएल इसलिए होना चाहिए so that it cannot be overlapped with another URL that is okay. So I'm writing here we are offering services in IT, right? So I'm verifying it and select type करेंगे self employed and IT services. अगर वेबसाइट का लिंक है तो आप एंटर कर सकते हैं, otherwise you can skip this as well. This is what I'm showing, how to create a page for your company. If you're running any business or services, then how to create your page on LinkedIn. तो LinkedIn पे कैसे पेज क्रिएट करेंगे आपका, ये सारा प्रोसेस आ गया। ऑर्गेनाइजेशन का साइज सेलेक्ट करेंगे, जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे, लोगो ऐड करना, टैग लाइन ऐड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन साइज बता दिया, राइट? सो ओके, यू नीड टू ऐड मिनिमम 50 लिंक्स फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि अगर आपने कोई लिंक्डइन का पेज बनाना है तो आपको कितने मिनिमम होने चाहिए, 50 कनेक्शंस आपके पास होने चाहिए। जब आपके पास 50 कनेक्शन आपकी प्रोफाइल में होंगे तब आप लिंक्डइन पेज क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले आपने कोई प्रोफाइल बनाया अपना लिंक्डइन पे, तो थोड़े दिन उसको दोगे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करोगे, अच्छे से कनेक्शंस उसमें बनेंगे, फिर आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग होगी, उसके बाद जाके आप एक अपना लिंक्डइन का कंपनी का पेज बना सकते हो। और कंपनी का पेज बनाने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी काफी टाइम से लिंक्डइन पे हैं और नाउ यू आर कैपेबल टू हैंडल योर कंपनी पेज और प्रोफेशनल पेज टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द यूजर्स। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, पहले आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, आप उसको प्रोफेशनल कर देते हैं, तो पर्सनल के लिए पहले एक रीच होना बहुत जरूरी है। तो सेम सिनेरियो इसमें भी आपका रहता है लिंक्डइन में। देन आप अपना मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कैंपेन रन करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मार्केटिंग कैंपेन रहते हैं, ठीक है? तो उन मार्केटिंग कैंपेन्स में आपका बेसिक्स जो 2-3 है वो है इमेज बेस्ड ऐड आपने लगानी है, जॉब्स के लिए ऐड लगानी है, कोई दूसरी लगानी है। सो कोई डाउट अभी के लिए ऑडियंस में? अभी तक के लिए कोई डाउट है तो प्लीज आप कंफर्म कर लें, देन आई विल प्रोसीड। Okay, we have one participants only, so there is no doubt.
So there is no doubt, I guess. Okay, so let's proceed. ओके सो ओके there's one doubt, इस आईडी में बना के आगे कैसे करें? हाँ, इस आईडी में पहले आप कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, फिर आप कंपनी का पेज बनाएंगे। तो पहले आपको कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। कनेक्शन बिल्ड करने का प्रोसेस यही है, जैसे आप माई नेटवर्क में गए, ठीक है? आपने क्या किया, कनेक्शन पे क्लिक किया, आपने चेक किया, यहाँ पे कनेक्शंस हैं, कनेक्ट कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया, तो इनको रिक्वेस्ट जो है वो सेंड होगी है, राइट? इनको जो भी आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी है। तो रिक्वेस्ट सेंड का मतलब है यू हैव अ गुड बेस, राइट? तो मैं अभी 50 लोगों को कनेक्शन, पर मेरा कनेक्शन बिल्ड में अभी आपका यहाँ पे आएगा, माई नेटवर्क में मैं अगर जाऊंगी तो आप देखेंगे कनेक्शन 0 है अभी, फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स 0 है, क्योंकि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। ग्रुप्स 2 हैं, इवेंट है, पेजेस हैं, तो एटलीस्ट आई शुड हैव मिनिमम दिस नंबर ऑफ कनेक्शन। तो इस आईडी में मेरे पास कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं इसका पेज ही क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, राइट? अब जैसे मैं कोई पुरानी आईडी अगर देखूं तो मेरे पास तो आई डोंट हैव एनी आईडी फॉर दिस। ओके, सो कनेक्शन बिल्ड तक कोई डाउट है देन आप प्लीज पूछें यहाँ से, नहीं तो फिर मैं अभी स्किप कर रही हूँ ये। सो नेक्स्ट आते हैं हम आपके यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे आपने मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाना है। यूट्यूब पे जाएंगे, साइन इन करेंगे, तो आई एम साइंड इन, राइट? साइंड इन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अपना ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ से जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, let me add another account that is important for YouTube. सो YouTube के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि YouTube में आप क्या करेंगे, कैंपेन बनाएंगे, और YouTube में आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो एक सर्च इंजन है जिसमें आप वीडियो ऐड शो कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स यू कैन परफॉर्म ओवर देयर। सो
I'm just waiting for the credentials. Meanwhile, I can do one thing. I can show you another thing. So let's say YouTube का पोर्टल है और YouTube पे जाके आप कहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट। तो YouTube स्टूडियो के बाद आप जाएंगे एडवर्टीजमेंट में। तो पहले मैं स्टूडियो पे क्लिक करूंगी। स्टूडियो में ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है। मेरे पास कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? 0। अभी कोई वीडियोस अपलोडेड है? नहीं है। आपके पास कोई कंटेंट है वीडियो पे? कोई कंटेंट नहीं है। तो मेरे पास एक आईडी है जिसमें अराउंड 2000 प्लस सब्सक्राइबर है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्रेडेंशियल ऑफ दैट आईडी। सो अभी आपने क्या करना है अपने एंड से कि यूट्यूब में स्टूडियो में जाके, जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप यहाँ से इसका सारा डेटा मैनेज कर सकते हो। कितने वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, लाइव वीडियोस किए हैं आपने, प्लेलिस्ट कितनी है, आपने कोई पॉडकास्ट किया है, कोई प्रमोशंस करी हैं। डैशबोर्ड में आपको सारा डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर हैं, एनालिटिक्स पे इसका एनालिटिक्स पार्ट आ जाएगा, कितना वॉच टाइम है, कितने सब्सक्राइबर आपके पास हैं, कितना डेटा सब्सक्राइबर का आपके पास है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिन्होंने वॉच किया है आपकी वीडियोस को। सेटिंग में जाके आप इसका ओवरऑल चेक कर सकते हैं कम्युनिटी को। तो जब भी आपका अकाउंट 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं और एवरेज वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, देन योर अकाउंट इज विजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन। बट फॉर बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट इट्स कंटेंट पार्ट, यू हैव टू कंप्लीट इट्स एवरेज वॉच टाइम, फिर देन आपका मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट अवेलेबल रहता है। लेट्स से अब मुझे करना है, जैसे अभी वेरिफिकेशन के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन करना है तो मैं इसको डिसमिस कर रही हूँ। राइट, आई जस्ट बी कमिंग बैक फ्रॉम हियर। तो क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे आप अपने चैनल पे जा सकते हैं यूट्यूब पे, और दूसरा आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइज करने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्लिक करूंगी। जस्ट अ मोमेंट। Just give me a moment. I'm just waiting for the credential. हेलो सर, वो मोहाली वाला पासवर्ड नहीं लग रहा है। आईडी यही है ना, डिजिटल एचपी मास्टर्स? अच्छा, चेंज कर रहे हैं तो कर दो फिर, आप चेंज कर। नहीं, और तो बहुत है पर उसमें है ही नहीं ना कुछ दिखाने के लिए, इनसाइट्स नहीं है। ईमेल। हाँ, मैंने देख कर दिया वैसे फॉरवर्ड वाला। एंटर कोड बता दो मुझे। ओके। लग नहीं रहा है ना सर, यही है ना, सर को बता दो। ओके, ठीक है, हो गया। बस थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो रहा है, वैसे हो गया। ठीक है सर, डन। थैंक यू।
So this is my YouTube channel. YouTube. हेलो हाँ जी। So this is the account. Yeah. So अकाउंट पे क्लिक करेंगे, YouTube स्टूडियो पे जाएंगे, and then you can check we have around 3964 सब्सक्राइबर एंड आपके पास जो नंबर ऑफ व्यूज है वो है 2.2K एंड वॉच टाइम है आपका 96.2 आवर्स 96.2 आवर्स। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कंटेंट पे जाएंगे इसके, तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट यू कैन वॉच, सम ऑफ द फ्री वीडियोस, सम ऑफ द पेड वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स हैं, लाइव वीडियो भी इसमें आपको मिलेंगी जो टेलीकास्ट की हैं, कुछ पोस्ट प्लेलिस्ट है हमारे पास बहुत सारी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स यू वुड कम अक्रॉस इन दिस चैनल। तो बहुत कुछ है इस पे। लेट्स से एनालिटिक्स पे जाएंगे तो एनालिटिक्स में आपके पास है जैसे आपके चैनल के 2196 व्यूज हैं लास्ट 28 डेज पे, सब्सक्राइबर भी अप हुए हैं, वॉच टाइम भी आपका बढ़ा है, एंड देन नंबर ऑफ व्यूज भी आपके बढ़े हैं। तो इस चीज से आपको क्या पता लगाना है कि आपके कंटेंट का कितना रीच है, राइट? आपके कंटेंट में किस टाइप का रीच है ऑडियंस का, कौन कौन सी वीडियोस हैं जो ज्यादा हिट हो रही हैं, कौन कौन सी वीडियोस पे जो है आपका 59% है आपका सेशन, 59% आपकी वॉच है। तो ये वाला वीडियो है जो आपने रिसेंटली अपलोड किया है यूट्यूब पे। तो अगर मैं इसको प्ले करूंगी, गो टू द वीडियो एनालिटिक्स, अब मैं इस वीडियो को देखूंगी फॉर एन एग्जाम्पल। व्यूज हैं इस पे 271, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है इसका 4 मिनट्स का और परसेंटेज व्यूड है 6.9। वीडियो एनालिटिक्स पे जाऊंगी यहाँ पे और चेक करूंगी मैं, तो इस वीडियो की वजह से मेरे पास 18 सब्सक्राइबर आए हैं और 19.1 का मेरे को वॉच टाइम मिला है जो यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंड देन 294 व्यूज मिले मुझे, राइट? तो एक्सटर्नल है यूट्यूब, मतलब मुझे सोर्सेज भी यहाँ से पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ से मेरे पास सोर्सेज आए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो सेशन है 57 सेकंड का सेशन है, ये सेशन 1। और जैसे मैंने ये लिंक लिया अपना, तो मैं अगर इस लिंक को ओपन करूंगी जाके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया ये लिंक, ठीक है? तो ये सेशन मेरे को ओपन हो जाएगा कहीं भी, मतलब ये ओपन पड़ा है ये वाला लिंक। तो ये सेशन जो था वो मैंने ही लिया था 4-5 दिन पहले, तो ये वाला वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड करके दिया था। तो इस वीडियो के वॉचेस का मैं आपको बता रही थी कि यार इसमें 292 व्यूज हैं 5 डेज एगो। तो कब का है ये? 5 डेज एगो का है। तो लेट्स से कम बैक टू दिस। तो कमिंग बैक टू दिस यूट्यूब चैनल, तो ये एक वीडियो का एनालिटिक्स मैंने आपको करके बताया। ये वाला वीडियो हमने अपलोड किया था 5 डेज एगो
और इसके सब्सक्राइबर कितने आए हैं हमारे पास, वॉच टाइम कितना रहा है, नंबर ऑफ व्यूज कितने रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ से आया हमारे पास, एक्सटर्नल सोर्सेज से था, यूट्यूब सोर्सेज से था या कहाँ से था। तो हमें यहाँ से ये पता लगाना है कि ये वीडियो अगर 5 डेज के लिए अगर यूट्यूब पे है तो हमारे पास कितना ट्रैफिक आ सकता है एक वीडियो से, कितना एनालाइज हम उस चीज में कर पा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जस्ट कमिंग बैक टू इट्स ऑन वाले पार्ट पे हम आएंगे। मे टेक अप टू अ वीक टू अपडेट। तो अभी आपको 500, जैसे 500 सब्सक्राइबर न्यू मिले हैं तो एक वीक के बाद वो अपडेट होंगे। 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं, कितने वॉच टाइम हमारे बढ़े हैं, तो ये सब चीजें जो हैं। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। तो कब इस चैनल की मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी सेट हो जाएगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए है अभी हमारे पास 4000 वॉच आवर्स जो है वो अभी पेंडिंग है। 1000 पब्लिक आवर्स है, 4000 जो है वो अभी पेंडिंग है। तो मैं एनालिटिक्स पे जाती हूँ दोबारा से, बाकी वीडियोस को भी एनालाइज करते हैं कि बाकी वीडियोस में क्या है हमारे पास। हाँ, तो अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सबटाइटल में। तो ये आप चेक करेंगे यहाँ पे 1 फरवरी का एक सेशन था, 1 फरवरी का एक सेशन था जो कि अपलोड करके 2 सबटाइटल में भी ऐड किया है। मतलब लैंग्वेज जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु आता है तो वो सब टाइटल से हो जाता है। दूसरा सेशन था डिजिटल पे, फिर वर्डप्रेस पे था, फिर ट्विटर पे था। डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस आपके जो हैं वो हमारे पास इस पे रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डू योर रीच ऑन द मार्केटिंग ट्रेंड्स, राइट। सो अभी हम आते हैं कंटेंट पे। अब इस चैनल पे हमारे पास कितना कंटेंट पड़ा है। इस पे 12 व्यूज हैं, डे 3 पे 32 हैं, डे 1 पे 292 हैं, देन 40 है, देन 32 है। तो इतना सारा डेटा हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड से आपको क्या पता करना है कि जो वीडियोस हमने लास्ट 48 आवर्स में दी थी उसमें देखो हमें व्यूज मिले हैं 33, 33, 49। तो इसका भी एक बेनिफिट है आपको कि हमें अपने चैनल को कैसे ग्रो कराना है, अपने चैनल में कैसे व्यूज लेके आने हैं, चैनल की रीच को कैसे बढ़ाना है आपके पास। जैसे एक वार्निंग भी हमारे पास है, तो वार्निंग भी आप कर सकते हैं। सो एक वार्निंग है हमारे पास कि एक हमारे पास कंटेंट था वो थर्ड पार्टी कंटेंट था, तो हमें ये रिमूव करना पड़ा, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक आपका एनालिटिक्स वाला पार्ट। एनालिटिक्स वाला, सॉरी, पहले मैं आपको एक सेटिंग वाला बता देती हूँ। सेटिंग में आपको 2-3 चीजें रहती हैं। जनरल में आप करेंसी सेट करेंगे यहाँ पे INR वाला। चैनल में आपका चैनल इंडिया से है, कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं अगर करना है। जैसे मेरे को ई लर्निंग का कंटेंट है तो मैं उसको ई लर्निंग से रिलेटेड करूंगी, हाउ टू ऑप्ट फॉर दिस ई लर्निंग। सो अपलोड डिफॉल्ट्स में आपका टाइटल आ जाएगा कि आप कैसे टाइटल को सेट करेंगे। देन आपके पास जो है यहाँ पे परमिशंस हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है कि ऑनर यहाँ पे कौन है। आपके पास जो चेंजेस हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं कि इनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये व्यू कर सकते हैं या कुछ और एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हम इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। देन कम्युनिटी में आ गया आपका डिफॉल्ट कम्युनिटी के, अगर आपके कोई मेंबर्स ऐड हैं तो मैं इसको अभी सेव नहीं करूंगी, मैं एज इट इज इसको कैंसिल कर दूंगी, राइट। तो एक आ गया आपको कॉपीराइट्स। कॉपीराइट का बहुत इशू रहता है यूट्यूब पे जब भी हम कोई चीजें अपलोड करते हैं। कॉपीराइट की जो कुछ पॉलिसीज होती हैं वो आपको चेक करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो कॉपीराइट की पॉलिसीज हैं कि आपका कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी से आपने प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे पॉलिसी एंड गाइडलाइंस में चेक करनी है, राइट। तो आपका कॉपीराइट हो गया, ऑन हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, सेटिंग हो गया। ऑडियो लाइब्रेरी आता है। ऑडियो लाइब्रेरी में क्या है, आपका आता है
जैसे कोई वीडियो आपने बनाया उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब की एक ऑडियो लाइब्रेरी है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑडियो लाइब्रेरी है, जैसे मैंने अगर अपनी वीडियो पे ये ऐड करना तो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट। आप इसको प्ले करके यहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं इन सिमिलर वे। अगर कोई और आपको वीडियो लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, उस तरीके से तो आप यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका ओके। सो दैट्स ऑल आपका यूट्यूब का पार्ट। एंड कमिंग बैक टू योर चैनल, अब मैं अपने चैनल पे आ जाती हूँ, फ्रंट एंड पे जो हमें दिख ये इसका एक वीडियो है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4000 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं और 337 वीडियोस हैं। तो इस टाइप से आप भी अपने चैनल के लिए सोच सकते हैं कि चैनल ओपन करना है, किसी टाइप का कंटेंट बनाना है। ई लर्निंग का कंटेंट बना सकते हैं, करियर कंसल्टेशन का कंटेंट बना सकते हैं, कुकिंग का बना सकते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, स्किल सेट है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फूड ब्लॉगिंग है, ट्रैवल ब्लॉगिंग है, बहुत कुछ है। लेकिन एक टॉपिक तो आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी, ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए घूमने जाना पड़ेगा, फूड ब्लॉगिंग के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अगर आपको ई लर्निंग का चाहते हैं तो ई लर्निंग के पास फिर आपको कंटेंट भी होना चाहिए उसी टाइप का कि आप क्या टीच करेंगे उसमें, राइट। So this is how. So that's all about your YouTube. So coming back to our online audience, इसको मैं close कर रही हूँ। Okay, so for the online audience, अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट बता सकते हैं अभी। Any doubt do we have? किसी के पास कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में चैट बॉक्स में अपना टाइप कर दीजिए रिलेटेड टू यूट्यूब या लिंक्डइन। Okay, so there is no doubt for the online students. So thank you so much. And I would request to each and every student, just follow up your online portal of Future Skills Prime and complete your videos on these two topics on LinkedIn, and the second one is on YouTube, right? And for the next topic, we'll go ahead for upcoming. So that's all about. And please don't forget to watch your videos and complete your course and also attempt quizzes. And that is the most important for you guys to complete this course on Future Skills Prime portal, right? So thank you so much. Thank you for your time and see you tomorrow with the new topic. Thank you. You all may sign off now. Thank you so much.